خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رودگی کا باعث ہوتی ہے، تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ خداوند کی پاک کلام پڑھے، سمجھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ دوسری تلاوت بھائی جوائن کریں۔ میجر صاحب کو السلام اور سب کو مدرسے کے بہت بہت مبارک ہو۔ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت نئے عہد نامے میں سے مقدس متی کے مقدس مرکز کی انجیل اس کا 12 باب 41 سے 44 آیت تک۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 12 باب 41 سے 44 آیات تک۔ پھر وہ ہیکل کے خزانہ کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانہ میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتھیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے۔ اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 مڑیاں یعنی ایک ڈھیلا ڈالا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے ہیں اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ سبوں نے اپنے مال کی بتیت سے ڈالا، مگر اس نے اپنی ناداری کی حالت میں جو کچھ اس کا تھا یعنی ساری روزی ڈال دی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ آپ کی روزہ تعلیم میں پاسٹر ہینرک آج کا کام ہے۔ کیا سب خوش ہیں؟ ہلیلویا، پریز گاڈ۔ میری خداوند تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور اپنی بیش بہا نعمتوں سے آپ سب کو مہمان کرے۔ سب بولے آمین۔ مسیح میرے عزیزو، آج ہم مطالعہ کریں گے ان دونوں تلاوتوں کا جو پرانے اور نئے عہد نامہ میں سے دی گئی ہیں۔ عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 55 باب 8 سے 11 آیات کا ہم پہلے مطالعہ کریں گے۔ آج کے جو کلام کا عنوان ہے وہ ہے کلام کا ہماری زندگیوں میں عملی اطلاق۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ واپس نہیں آتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور روزگی کا باعث بنتی ہے، تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند براہ راست ہم سے
यसाया नबी की मार्फत हम कलाम आज भी उसी तरह से हो रहा है। आज यसाया नबी तो नहीं, लेकिन उसकी जगह खुदावंद के खादमीन जो हैं वो वही किरदार अदा कर रहे हैं जो कि पुराने वक्तों में जो अंबिया कराम थे वो करते थे। सो मसीह खुदावंद में मेरे अजीजो, कलाम मुकद्दस हमसे यूं फरमाता है कि लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और मां तुम्हारी राहें मेरी राहें। इंसान जो है वो बड़े बड़े दावे करता है, बढ़िया बढ़िया पंजाबी के बढ़िया बढ़िया फड़ा मारता है, यानी बड़े बड़े दावे ऊंचे जो उसकी बसात से बाहर हैं, जो उसकी ताकत से बाहर है, वो भी बातें करता है, मैं ऐ कर दांगा, मैं औ कर दांगा। सो लेकिन कार वो कुछ नहीं सकता। सो खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं। खुदावंद हम इंसानों की तरह बढ़ के नहीं मारता। खुदावंद हम इंसानों की तरह जो है बड़े बड़े दावे नहीं करता। खुदावंद हम इंसानों की तरह बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, बल्कि खुदावंद वही वादा हमारे साथ करता है जो उसकी नजर में हमारे लिए बेहतर है। वही काम करता है जो उसकी नजर में मेरे और आपके लिए बेहतरीन है। और आगे लिखा है, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। अब हमारी राहें क्या है? हम हमेशा तरक्की के लिए, अपने आप को खुशहाल बनाने के लिए हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। यानी हम जो है वो ये करते हैं कि फलां बंदा भाई सलीम जेड़ा ना वो बड़ा अमीर है, और को इनिया गड्डियां ने, इनिया कारां ने, ओदा बड़ा खूबसूरत कार है, एल्डर मंजूर है, ओदे को भी 2 गड्डियां ने, बड़े खुशहाल ने। हुण असी की करिए? असी जिन्हां दे विच असी इन्हां वांगू हो जाइए, असी की करिए? इसके लिए वो गलत काम करते हैं, अमीर बनने के लिए गलत काम करते हैं। ये देखें कि इन दोनों खानदानों ने इस स्टेज पर पहुंचने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत की है, इन्होंने कितनी मुशक्कत की है। इन्होंने खुदा के घर के लिए अपनी नेक कमाई में से ये क्या देते हैं? मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है कि मेरी राहें तुम्हारी राहें नहीं हैं। सो खुदा जो है वो हमें भूखा नहीं मरने देता, खुदा जो है हमें प्यासा नहीं मरने देता। जैसे हमने यूना नबी के बारे में जब मैंने कलाम किया था तो मैंने ये बताया था कि यूना उस बेल के लिए जिस पर उसने मेहनत नहीं की थी, जिसको उसने ना बोया, ना उसने उसको पानी दिया, ना उसकी गोड़ी की, ना उसको उसने उस छप्पर पर चढ़ाया, और मेरे जीजो जब वो बेल सूख गई तो खुदावंद के आगे गिले शिकवे करने लगा कि ऐ खुदाया तू मेरे नाल की कीता, बड़ा जुल्म तू मेरे नाल कर दिता। खुदा उसको उस बेल के जरिए सिखाना चाहता था। खुदा उसको उस बेल की जो स्टोरी है उसके जरिए उसके दिल में नैनवा के लोगों के लिए मोहब्बत पैदा करना चाहता था। खुदा उसके दिल से नैनवा के लोगों के लिए हसद और नफरत निकालना चाहता था। सो खुदा ने कहा, यूना मुझे एक बात बता, क्या तूने इस बेल को बोया, बीज इसका जमीन में बोया? उसने कहा नहीं। तूने इसकी गोडी की? उसने कहा नहीं। तूने इसको पानी दिया? उसने कहा नहीं। तूने इसको उस छप्पर के ऊपर चढ़ाने के लिए इसकी जो है वो मेहनत की? नहीं। सो उसने कहा, खुदा ने उसको
کہ जब के तूने इस कद्दू की बेल के लिए अपना हाथ बल्कि उंगली तक नहीं हिलाई, और तू इस नैनवा के शहर में जो 1,20,000 से ज्यादा लोग हैं, तो इनके लिए मौत क्यों चाहता है? तू क्यों इनसे नफरत करता है? तू क्यों चाहता है कि मैं इनको तबाह और बर्बाद कर दूं, जबकि इन लोगों ने सच्चे दिल के साथ अपने गुनाहों से तौबा की है। तो खुदा ने 1,20,000 लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने सच्चे दिल के साथ खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार किया, उनसे तौबा की और आइंदा गुनाह ना करने का खुदा के हुजूर वादा किया। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरा और आपका खुदा कलाम में लिखा है वो कहर करने में क्या है और शफकत में क्या है। तो फिर मेरे अज़ीज़ों, हम क्यों अक्सर औकात खुदा की जात से मायूस हो जाते हैं? हम अक्सर औकात जो है दौलतमंद बनने के लिए एक दूसरे के, जो दौलतमंद हमारा पड़ोसी होता है उससे हसद करते हैं, उस यूना की तरह, जैसे वो जो है नैमा के लोगों के लिए अपने दिल में हसद और नफरत रखता था। सो हम वैसा बनने के लिए शॉर्टकट मारते हैं, और शॉर्टकट जब हम मारते हैं हम गलत काम करते हैं, हम किसी का हक छीनते हैं, हम डकैतियां करते हैं, हम चोरियां करते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, जो है एक दिन मुझे ना वो डॉक्टर साहब जो आते हैं आपके जहाँ पर इलाज के लिए, वो मुझे बता रहे थे, घर हमारे आए थे, तो मुझे कहने लगे कि पास्टर साहब, मैंने एक बंदा जो है ना, उसको मेरे जानने वाला है, वो बाहर सऊदी अरब गया। सो पहले बंदा बड़ा चालाक था, शॉर्टकट मारता था अमीर बनने के लिए। सो कहता उसने पहले वहां से बैंक से ना छोटे छोटे लोन शुरू किए, वो उनको ऐसा ऐसा दे देता था। फिर एक दिन वो कहता है कि मैंने सोचा निके निके कर्जे हैं ना, तो मेरा कुछ नहीं पड़ना, मैं को बड़ा सारा कर्जा ला है थोड़ा। सो उसने कहता कोई करोड़ों के हिसाब से कोई 50-60 करोड़ कर्ज लिया और पाकिस्तान आ गया। मैंने कहा फिर? कहता वो फिर गया ही नहीं, ना मैं सऊदी अरब जावांगा, फिर ना मैं कर्जा दांगा। इधर आके उसने अपना बिजनेस शुरू किया, कहता वो अरबपति बन गया है वो बंदा। सो मेरा बताने का मतलब ये है, आपको दुनियावी मसाले में इसलिए रूहानी बातों के साथ बताता हूं ताकि आप लोग समझ सके आसानी के साथ। सो ऐसा ही हम लोग भी करते हैं, हम शॉर्टकट मारते हैं, लेकिन मेरे दिलों हम मसीह लोग जो हैं, हमें ये शॉर्टकट रास नहीं आते, हमें गलत काम में रास नहीं आते, और हम लोग समझ जाते हैं कि मैं फलानी जगह मैं फलाने नाल हेरा फेरी की थी, तो मेरे घर से बीमारी आई है, मैनू मेरा एक्सीडेंट होया, मैनू ओदी सजा मिली। हम लोग समझ जाते हैं, लेकिन गैर मसीही लोग जो है वो इस बात पर तवज्जो नहीं देते। सो मेरे दिलों, यहाँ पर लिखा, वो कहता है कि मेरी राहें तुम्हारी राहें नहीं हैं, और क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। खुदा जो है वो मेरे लिए अलग सोचता है, पास्टर विक्रम के लिए अलहदा सोचता है, एल्डर शमौन के लिए अलहदा सोचता है, एल्डर लियाकत के लिए अलहदा सोचता है, एल्डर मंजूर के लिए अलहदा सोचता है, बहनों में से सब बहनों के लिए जो है वो हर एक के लिए उसके अलहदा अलहदा ख्यालात हैं, वो उनको उनकी हैसियत के मुताबिक देता है। और मेरे अज़ीज़ों, इसलिए लिखा है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से क्या है, बुलंद हैं, और कहता है कि मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। खुदा को पता है कि पादरी एमरत नूं की जरूरत है, एल्डर शमौन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। एल्डर लियाकत है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। और मेरे अज़ीज़ों,
एल्डर साहब खुदा देता है ना रोज की रोटी, जरूरत पूरी करता है ना। सो इसीलिए खुदा कहता है कि मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। खुदा हम सबको रोज की रोटी देता है, कोई भूखा नहीं सोता, ना वो जो खुदा उनको नहीं मानते, ना वो जो खुदा उनको मानते हैं, सबको खुदा यकसा रोटी देता है। सो मेरे चीजों कहता है उसी में जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब, बारिश ना हो जैसे की कर रहे हैं, गर्मी पीछे गर्मी बाहर बल्कि घर दे विच भी आराम नाल नहीं सी बैठा जाता। सब लोग दुआ करते थे, या खुदाया बारिश हो। पूरा पाकिस्तान, चाहे वो मसीही है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो जो है वो मोरमन है, चाहे वो कोई भी है, सब खुदा के हुजूर जो है वो दुआ करते थे कि है खुदाया तू हम पर रहम कर और बारिश जो है वो हम पर बरसा। कलाम में लिखा है कि खुदा जब बारिश बरसाता है तो वो नेकों और बदों पर यकसा बारिश बरसाता है। ये नहीं कहता लवी आ घर जेड़ा नहीं चर्च नहीं आउंदा ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बारिश नहीं पड़ती। खुदा चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन खुदा सबको यकसा रखता है। जैसे नैमा के लोगों पर उसको रहम आया और उसने उन्हें माफ किया, वैसे ही खुदा सबको माफ करता है और खुदा सबको इतना वक्त देता है, इतनी मोहलत देता है कि सबकी जो है वो तौबा तक नौबत पहुंचे और हर बशर जो है वो निजात पाए। उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुयस्सर होगा। सो मेरे अजीजों, खुदा कहता है कि जिस तरह जो बारिश है उसका पानी रायगा नहीं जाता, बारिश के होने से जमीन पर अनाज उगता है, फल जो है वो पकते हैं, सब्जियां उगती हैं और मेरी मखलूक जो है वो खाती है और सेर होती है। उसी तरह मेरा कलाम जो है वो भी रायगा नहीं जाएगा, यानी वो बेफल नहीं ठहरेगा। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा जो है वो सबका यकसा खुदा है। आगे हम देखेंगे मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 41वां बाब 44 उसका 12 बाब 41 से 44 आयत मेरे साथ निकालिएगा। मुकद्दस मरकज की अंजील 12 बाब 41 से 44। यहाँ पर हम देखेंगे एक बेवा का नजराना, ये रोशनी पानी है चंगी टका के, क्योंकि लोग जो है ना इस हवाले वो अपने मकसद वास्ते इस्तेमाल करते हैं और वो मैं मकसद दसांगा वो की है। फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था। कौन देख रहा था? कौन बता सकते हैं कौन देख रहा था? बताइएगा। अभी आपने कलाम में से सुना था खुदावंद यसु मसीह, बाजी नसरीन ने सही बताया, बिल्कुल। बाजी नसरीन के लिए तालियां बजाएं। फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाना में पैसे किस तरह डालते हैं। यसु मसीह वेंदा सी पिया, ओदियां रूहानी ते दुनियावी अखां दो ही काम करन नहीं आ सन। भावें कोई इंज करके भी पाता है ना, तुहानूं पता लग जाता है इन्हें 1000 पाया, इन्हें 10,000 पाया, इन्हें रुपया पाया, इन्हें चवानी पाई है, इन्हें 10 पैसे पाए हैं। सो मेरे अजीजों, और बतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। ध्यान से सारे सुनिएगा। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी एक भेला डाला। समझ लो 2 रुपया का सिल्वर का सिक्का होता, समझ लो 2 रुपये देगा वो पाया। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, यसु मसीह भेज रहा थे शागिर्दां नाल डायलॉग भी होने लगे।
मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सब से ज्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतायत से डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जो कुछ इसके पास था अपनी सारी रोशनी डाल। और मैं ते रोशनी पावांगा कि असी लोग जिहड़े बहुते सियाणे बनते हैं ना, बहुते ही सियाणे, जरूरत तो बहुते सियाणे, वो इस हवाले नूं जिहड़ा उन्हां अपने रटिया दिमागां च फीड कीता है। कोई गल होए ना, पादरी साहब वो बेवा ने तो सिर्फ टगा पाया सी एक, ते यसू ने उसकी बड़ी तारीफ की सी। ते पादरी आंदे ने ला बई इन्ने पैसे पाओ, दह यकियां दवो, अपने हदिये दवो, कार्ड का चंदा 500 रुपया दवो। सो ये पादरी बिल्कुल यसू की तालीम दे उल्ट जाते नहीं। मेरे दीदो, वो लोग इस बात को नहीं समझते, पता उन्होंने होंदा लेकिन केचड़े बड़े होंगे, पता हर गल का होंदा है। यसू ने कहा कि जो कुछ भी उस बेवा दे कोल है सी, उन्हें अपनी सारी जिहड़ी जमा पूंजी सी सारी यसू दे खुदा दे घर दे विच दे दी। असी की करने हैं, मैं जब जाता हूं ना घर, तो दुकान पर एक कबाड़िया है, उसके नाल मेरा कंट्रैक्ट है, ये जेड़े चंदा होंदा ना 10-10 रुपए ये वो सारे उन्होंने दे। सो कई बार मैं कहता सर जी आ वेखो आ नोट के मुझे कुछ लै आते हो, चलो मैं रख लेना तो चल गए तो ठीक है। सो हम लोग जो हैं, हम इस हवाले को नाजायज तौर पर अपने आप को बचाने के लिए, सच्चा साबित करने के लिए और खुदा के खात्मों को झूठा साबित करने के लिए रटे है, हवाला भी रटे है। मुकद्दस मरकज़ी इंजील ओदा 12 बार तो 41-44 रटे है बिल्कुल पूरा। सो हम लोग जो है असी जेड़ा नोट जेड़ा दुकान ते नहीं ना चलता, मैं देना वास्ते वो असी हदिये च पा देना। सो मेरे दीदो, जिहो जिहा नोट आठ पाटा बनाना पाने ते बरकत किहो जी मिलनी है? डॉक्टर लियाकत साहब दस्सिओ जरा, बरकत मिलनी है ओदी? नहीं, वो तुहाडा नोट जो चलना नहीं ना, तुहाडा हदिया जेड़ा ना बेकार फजूल। हाँ जी, बरकत तुसी हमेशा वास्ते अपनी रोक लेंदे हो। मैं कोरिया में था और मैं भी, हम जो हमारी फैमिली के मेंबर थे, असी भी जाके ना कोरियन तो वेखो वेखी ना असी नहीं से गली चंगी गल है। हफ्ते वाले दिन वो लोग बैंक में जाते हैं और चर्च में हदिया डालने के लिए बिल्कुल 0 मीटर नवे नोट ले। सो हम भी जब उधरते, हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक हम भी जो है वो, आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि खुदा के घर में नोट जो है वो बेहतरीन नोट जो है वो हदिये के लिए डाला जाए। पास्टर बिरम को पता है, जब मैं हदिया डाल रहा हूँ तो देखता है नया नोट होता है बिल्कुल। मैं हफ्ते वाले दिन दुकान तो मैं जो सौदा लैन जाऊँ कि भाई यार ए बड़ा नोट जो नवा दो। सो कोशिश करें, 10 डालते हैं, 20 डालते हैं, 50 डालते हैं, 100 डालते हैं, जो भी खुदा ने आपको तौफीक दी है वो बिल्कुल नया नोट हो, ताकि आपकी बरकत भी 0 मीटर पर मिले। 0 मीटर का मतलब है कि खुदा तुहानू अपनी बहुत बरकत है। जो तुसी खुदा दे घर दे विच अच्छी चीज दोगे तो खुदा खुश होएगा। तो ये अपने ज़हन में एक गल कर दो कि बेवा ने यहाँ पर लिखा है, क्यों उस बेवा ने, कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियां यानी 1 धेला डाला। अगे लिया जो कुछ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਯਾਨੀ 1 धेला ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਚੜਿਆ ਇੰਜ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੁਚੜਿਆ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਨੋਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਹੈ। मेरे दीदो, खुदा से बरकत लेनी है
تو آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی پوری پرانے احکامہ میں پوری آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، وہ خدا کے گھر میں دہیے کی پوری ایمانداری سے ڈالتے تھے، وہ خدا کے گھر میں شکر گزاری ایمانداری کے ساتھ ڈالتے تھے، وہ خدا کے گھر میں اپنے ہدیے اور نذرانے خوشی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ڈالتے تھے۔ اور میرے عزیزو ہم ہیں ابھی چڑھاوا میں کھجورا کی گل سنائی سی نا ڈاکٹر صاحب، کنی کو نہیں یاد ہے کھجور تے چڑھ کے کھجورا کھانا بھائی جدوں تے ویکھیا بھوک لگی ہے کھجورا پکیاں نے منہ چ پانی آیا لا بھی بھاری بڑا ٹین چڑھے بھوک لگی ہے تے بندہ بڑا کچھ کر لیندا ہے، کھا کھو کے جب رج گیا نا تھلے ویکھیا تے اوئے ہوئے 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 میں تے ڈگ پیا تے میں تے مر جانا یا کچھ نہ ہوئے لت پٹ اڑ جانی یا سر پاٹ جانا، خدا دے کے دیکھا 5 سکھ لیاں خدایا سے اسلام خدا دے پترا 5 دے کہتا تو 2-3 فٹ تھلے آ نہیں خدایا 5 بہت یعنی 4 ٹھیک ہولی ہولی کر کے تھلے اتر آیا دے جنا پورا ایکشن دا انج اتر آیا دے انج کپڑے جھاڑ اڑ کے انج کر کے خدایا نہ کدی کھجور دے چڑھا گے تو نہ دے گا۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو بڑے سکنے ہیں بڑیاں مندہ ماننے ہیں کہ خداوندہ ساری مصیبت تو دور کر، خداوندہ منو نوکری دے دے، میں مینیجر دا پوسٹ واسطے انٹرویو دین جانا ہے، خداوندہ منو نوکری دے دے تو میں پہلی تنخواہ جڑی ہے نا ادھی تنخواہ تیرے کر چکا جو تنخواہ ملنی ہے تو بھائی کو خدایا کو تو نہ تیرے کے منت منا گے تو نہ تیرے ادھی تنخواہ دا۔ سو میری چیزو کلام میں لکھا ہے کہ جو تو منت مانتا ہے اس کو پوری کرنے میں دیری نہ کر، اگر تو دیر کرے گا تو خدا اس منت سے کئی گنا زیادہ تیرے گھر سے نکال لے گا، وہ تجھ پر بیماری لائے گا، وہ تیرے کاروبار میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈال دے گا، وہ تیری نوکری سے تجھے جواب دلوا دے گا، تیری نوکری چھوٹ جائے گی۔ سو میرے جو خدا جو ہے وہ اپنا حصہ لینا چاہتا ہے اور لے کر رہتا ہے۔ سو آگے ہم دیکھتے ہیں لاگی یہ سمجھ آ رہے ہیں بیوہ دے تندرے آڑی اگو تو نہیں آکھو گے کہ بیوہ نے تے ایک ٹیلا دیتا ہی تے پاری صاحب تسی سانو کہیں دیو کاٹ تو کاٹ 100 روپیہ ہونا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 4-5 سال پہلے کی بات ہے، میں نے یہ بات کی تھی کہ خدا نے آپ کو دیکھو تندرستی دی ہے، خدا نے آپ کو اچھی صحت دی ہے، خدا نے آپ کو اچھا کاروبار دیا ہے، خدا نے آپ کو اچھی نوکری دی ہے۔ سو اس کی شکر گزاری کے لیے میں نے کہا کہ 10-20 روپیہ نہ پایا کرو، کٹ تو کٹ 50 روپیہ 100 روپیہ پایا کرو۔ تو ایک بندہ ہمارے چرچ کا ممبر نہیں ہے برا، انہیں گل کی تھی، کسی نے گل گھومتی میرے کو بھی آ گیا۔ سو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی آپ نے نہیں دینا تو نہ دیں، آپ پادری صاحب پر تو فتوے نہ لگائیں۔ سو بات جو ہے وہ خدا کے خادم تک پہنچ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خدا کے خادم سے ضرور محبت کرتا ہے اور وہ برداشت نہیں کرتا۔ لیکن میرے عزیزو کلام مقدس میں یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو یعنی ہم خادموں کو جو اب خادم ہیں یہ اختیار دیا تھا۔ دھیان سے سنیے گا ذرا یہ بات، یہ حوالہ دھیان سے سنیے گا، بیٹا باتیں نہ کرو، دھیان سے کلام سنو۔ سو اسے کہا تھا جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ کیا ہوں گے؟ معاف کیے جائیں گے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے گناہ کیا ہوں گے؟ قائم رکھے جائیں گے۔ سو اس کے لیے میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں۔ علیشہ نبی ساتھ سے گنجا تھا، وہ جا رہا تھا اور کھلنڈرے لوگ جو ہیں وہ لڑکے راستے میں کھڑے تھے، انہاں گیا چلا چل چلا چل اے گنجے سر والے چلا چل، مڑے ہی نہیں، ایک کاری کیا 2 باری نہیں، راٹی لا لئی انہوں۔ علیشہ انسان تھا، اس میں بھی اس کو بھی غصہ تھا، آخر اس نے جب انہوں نے نان آئے گل چھٹی انہیں لعنت پہ دیا۔ تو کلام نے لکھا ہے کہ جنگل سے ریچھلیاں آئیں، انہوں نے ان بچوں کو پھاڑ ڈالا اور جان سے مارا۔
सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के खादमों पर कभी ऐसे उंगली करके तनकीद ना करें। खुदा का खादम अगर गलत करता है, बुरा काम करता है, उसका हिसाब उसने खुद देना है। अगर आप खुदा के खादम पर उंगली उठाएंगे, उसकी बुराई करेंगे, तो खुदा उसकी सजा आपको देगा। और इसके लिए एक और वादा बताऊंगा। जब मूसा ने दूसरी शादी की, मूसा ने 3 शादियां की, जब उसने दूसरी शादी की तो उसकी बहन मरियम ने ऐसे दाएं हाथ की ऐसे उठाकर उस पर लानत मलामत की और उसे कहा, ले बड़ा तू बड़ा खुदा दा नबी बनया, फिर अल्लाह को दूजा ब्याह कर लिया, तेरी पहली बीवी है। खुदा को उसकी ये बात पसंद नहीं आई। खुदा ने मरियम के बाजू को बिल्कुल ऐसा और कोड़ ज़दा कर दिया, कोड़ पै गया। ਉਹਦਾ बाजू इतो ना थले जाता ही ना उते, इथे ही रहता। सो मेरे चीजों, मैं आपको कलाम मुकद्दस में से इसलिए हवाले बताता हूँ कि खुदा के खादमों पर कभी उंगली मत उठाएं, खुदा के खादमों को कभी बुरा मत कहें। खुदा के खादम जो हैं वो खुदा के भेजे हुए जो हैं, वो उसके नायब हैं, वो उसके कलाम को आप तक पहुंचाते हैं। आगे यूहन्ना की इंजील 11वां बाब 1 से 45 आयत में मुख्तसर बताऊंगा। यहाँ पर लाजर का वाक़या है और लाजर को, उसकी बहन मार्था को और उसकी बहन मरियम को यीशु बहुत प्यार करता था, उनको बिल्कुल अपनी फैमिली के मेंबर जानता। और जब लाजर बीमार था तो मार्था ने जो है वो पैगाम यीशु के पास भिजवाया कि ऐ खुदावन, तेरा दोस्त जिसे तू बहुत प्यार करता है बड़ा सख्त बीमार है और मरने के करीब है। यीशु जानबूझकर वहां नहीं गया और चौथे वो जो है वो लाजर मर गया। फिर उसने पैगाम बनाया, बजाया कि मर गया ही उड़ते आ जा। यीशु जो है उस मरने के 4 दिन बाद जो है वो उनके घर गया और सीधा कब्र पर गया। और कलाम में लिखा है कि यीशु ने दुआ की, ऐ लाजर कब्र से बाहर निकला, और लाजर कफन समेत लिखा है कि कब्र से बाहर आ गया। मेरे दिलो, लाजर की बीमारी, लाजर की मौत जो है वो खुदा के नाम को जलाल देने के लिए सब। यीशु चाहता था उसको बीमारी से उधर से कह सकता था लाजर ठीक हो जाता, चाल नहीं, ये बीमारी और ये मौत खुदा के नाम को जलाल देने के लिए थी। सो आगे हम देख रहे हैं मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, रोम की कलीसिया के नाम 12 बाब 2 आयत, यहाँ पर लिखा है, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। तो असी तो अकल नवी होनी नहीं देंगे, आगे डांग बड़ी है, ला भी अगले को आह मेरे लागे तेन मैं डांगा भागना छड़िया। चर्च आया करें। आज चर्च कितने बजे? 9 बजे का टाइम है, 10 बजने में 10 मिनट बाद चर्च शुरू हुआ। मैं आगे गौन भागे तो मैं अड़ीकन डया था कमरे बैठ के कि कदों मेरे चर्च की मेरी लाडली इंग्लिशिया आए तो असी अपना खुदा की इबादत शुरू। मेरे अजीजों, मैंने पहले मैं अक्सर आपको कलाम सुनाते वक्त इसलिए डांटता हूं, इसलिए आप पर गुस्सा करता हूं क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मैं अपनी कलीसिया के लोगों के लिए, मेरे दिल में चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, उसी तरह बराबर मोहब्बत है। और मैं इसलिए आपको अक्सर गुस्सा करता हूं ताकि आप खुदा के कलाम के मुताबिक जो है अपने आप को ढाल सकें। जो खुदा के अंबिया है, नातन नबी ने जब दाऊद ने हित्तियोरिया की बीवी बैतहसदा से शादी की नाजायज तौर पर, उससे बेटा जो है वो उसने लिया। उसने हित्तियोरिया को जंग में, जिवें हम बार्डर ते जंग नहीं आनी लगी पाकिस्तान इंडिया दे, सीज फायर हो गया कल का 4 बजे, फिर भी जिहड़ी इंडिया शरारत कर गए थे ओने फायरिंग जिहड़ी जारी रखी है ते बार्डर ते बड़ी सख्त लड़ाई हो रही। दाऊद ने अपने
ਖਾਸ ਔਰਗਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜੰਗ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ बीवी ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ बीवी ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ बुरी नजर ਸੀ, इसलिए हित्ती ओरिया मर गया और उसने उससे शादी की और नातर नबी को खुदा ने भेजा, जा दाऊद से यही है। सो नातर नबी ने एक कहावत सुनाई, उसने कहा है दाऊद बादशाह एक आदमी के पास 100 भेड़े थे और एक आदमी के पास एक ही भेड़ थी, वो उसको अपने बच्चों की तरह प्यार, उसके यहाँ मेहमान आया तो उन्हें अपनी 100 भेड़ा विचों एक भेड़ नहीं जबा की थी, उन्हें उस बंदे की भेड़ खोली उन्हें जबा करके अपने मेहमानों को खाता था। दाऊद कुत्थे ना उठा, कहता वो आदमी किथे वे, वो कतल दे लायक है, ते नातन नबी जेड़ा वो भी गुस्से ना बोलिया, उन्हें कहा ऐ बादशाह वो तू है। नबी नहीं सन डरते, आजकल के पादरी ते डरते ने, मैं नहीं डरता, मैं खुदा को डरदा, जो खुदा दे कलाम मिले है वो मैं तुहानू उंज ही सुनाना है, भावें तुसी मेरे नाल गुस्से हो जाओ, भावें चर्च जेड़ा है वो ना आओ, लेकिन मैं खुदा दा कलाम सुनाने तो नहीं मुड़ना। ते जिस तरीके नाल खुदा मेरे दिल च पांदा है, जिस तरीके नाल खुदा मेरे दिमाग च पांदा है, मैं कलाम उसी तरह सुनाना। अगर मैं तुहाडे नाल थोड़ा गुस्से नहीं होवांगा, तुहानू नाराज हो के गल्लां नहीं दसांगा तो खुदा मेरे को हिसाब लेगा। जो मैं मरना मैं जाना खुदा की अदालत दे विच, खुदा ने कहना पादरी एमरिक तेनू मैं कलाया है मेरे लोगों को कलाम दी चलिए, तू तो उसे डंडी मारता रहा अपनी चर्च की मैंबरशिप जी है वो बचाने वास्ते। सो मेरे सीधो खुदा के नबी जो हैं और खुदा के खादमीन जो हैं वो डंडी नहीं मारते, बल्कि खुदा का कलाम स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनाते हैं। सो यहाँ पर लिखा है कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अकल और नबी किदों होंदी है, जो खुदा दा कलाम सुनोगे, पढ़ोगे, चर्च टाइम नाल आओगे ते खुदा दे कलाम को सुन के उते अमल करोगे। मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूँ कि उस बेवा की तरह जब आप, मैं ये नहीं कहता पूरी तनख्वाह 30,000 मिली तो लिया के चर्च का, नहीं मेरे अजीजों, उसमें से आप शुक्रगुजारी के तौर पर हर महीने खुदा के घर में डाला करें। और कलाम में लिखा है मलाकी 3 बाब और 10 तो 15 आयत में लिखा है, मेरे घर में देकर देखो और इसी से मेरा इम्तिहान करो कि मैं तुम्हारे ज़खीरा खानों को अनाज से इस कदर भर दूंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी, और जो गैर कौमें हैं वो तुमसे कर्ज लेगी और तू जो है उनको कर्ज लेगा नहीं। सो मेरे जीजो, खुदा जब कहता है कि मेरे घर में लेकर देखो, अभी फिर क्यों कहने हैं मैं पादरियां जेड़े ने इन्हां दे दया यकीन तो सवा और कलाम ही नहीं सुना। खुदा का कलाम जो है वो चलता रहता है, फैलता रहता है, आप चाहे दें चाहे ना दें, लेकिन जो देगा वो खुदा से बरकत हासिल करेगा। हुण काटा दा चंदा मैं हर द्वार कहना, कोई 4-5 महीनों का जेड़े दे सकते हैं वो भी नहीं देते, सारे दे सकते हैं, लेकिन मेरे जीरो खुदा के घर दे विच तुसीं 500 रुपया काट दा चंदा महीने का दोगे तो तुहां गरीब नहीं हो जाओगे, ना ही तुहां भुखिया मरना, बल्कि खुदा आपको और ज्यादा बख्श देगा। अब हम आते हैं जो मेन चीज है, अब हम मुआवजा करेंगे दुनियावी ख्यालों का ते इलाही ख्यालों किना दा। मैरी बताओ जरा किन ख्यालात का मुआवजा करना है, दुनियावी के इलाही? रस्ते आप बताओ, क्या मैंने बताया? पढ़िया लिखा का हाल दुनियावी ख्यालात वर्सेस इलाही ख्यालात, 2 दफा मैंने बताया। गल्लां मुकरदे खुदा दे कलाम दी समझ आए ना। नंबर 1 असी कहने इंसान अंदर ये नामुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन खुदा कहता है सब कुछ मुमकिन है, खुदा सब कुछ कर सकता है। इसके लिए हवाला देखिएगा
मुकद्दस लूका की इंजील पहला बाब 37 आयत। नंबर 2, मैं थका हुआ, दिहाड़ी ला के आना ते शाम नूं घर आके डेगी पैना, बेगम दे भी ब्रंट कटे होने ने, बच्चों नूं भी ओ इधर आ, ओ इधर आ, सारियां दी सख्ती आई हुंदी है। का बाहर भावें बड़ा हंबल बनया होवे, बड़ा जी करदा है, घर आके ना डिक्टेटर बन जाना, जनरल ज़ियाद। सो मेरे जीतो असी कहने बेगम सियाला दिन छेती छेती ना भेज के पानी तत्ता कर, मैं थकिया हुआ तो मैं नहाना, मेरी थकावट हो गई। खुदा कहता है ऐ थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हमेशा का आराम दूंगा। इसके लिए हवाला है मत्ती 11 बाब 28 से 30 आयत। और मैं एक गल होर वेखी, मैं चर्चा च रहना वहां लाहौर दे विच, लोकी जेडे पढ़े लिखे बच्चे ने या जवान ने या शादीशुदा, उन्हें कापी पेंसिल रखी हुंदी है। पादरी साहब जेडे नूं दसदे ने ना मेन पॉइंट दे हवाले वो नोट करदे ने। साडे चर्च दे विच ते पढ़े लिखे भी अनपढ़ ने, ये भी अनपढ़ा वर्गे ने। मैं अज तक 9 साल हो चले ने, मैं अज तक एक करलांदा आया, वो बच्चों जेडे पढ़े लिखे ने कापी पेंसिल लिया जे नहीं खरीद सकते तो मैनू सारे नाल लिखाओ, मैं अगले बार ना कापियां लियावांगा ते बॉल पेंसिलां भी तुहाडे लिया करो। कोई तुहाडे पले पे घर जाके उन्हें पढ़िया करो ते अपने मां प्यो नूं ते सारिआं नूं सुणाया करो कि पारी साहब ने अज ऐ किया है। यीशु ने कहा ऐ थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हमेशा का आराम दूंगा। तीसरी बात, दुनियावी ख्याल इंसाना दे कोई मुझे प्यार नहीं। वो बच्चा है ना, उन्होंने मां प्यो भी इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। कोई बहुत सोहना जरा बच्ची का बच्चा है ना, ला मां भी उन्हें चौंदी चढ़ती रही, प्यो भी आ मेरा पुत्र, मेरा लाडड़ा जहा पुत्र इधर आ। जेड़ा बेचारा मेरे वर्गा थोड़ा जहा सुना होएगा ना, और जा पर जाके जान छड़ मेरी की मेरा दिमाग खा मारे। सो मेरे चीजों यहाँ पर लिखा है खुदावंद मुझसे मोहब्बत रखता है, इसके लिए बड़ा मशहूर वाला सब नूं याद है, यूहन्ना 3 बाब 16। कोई उठ के सुना सकता, मैं उठ के जिन्होंने दलेरी करो सारे नूं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। तालियां मार दो खुदा के। सो मेरे जीजो, यसू सानू भावें वो काला बंदा जे नीगरो जे भावें अफ्रीका दा ते बसुरा जिहा मोटे बुल्लां वाला भावें जेड़ा मर्जी है, यसू ओनू भी उन्ना प्यार करदा जी जिन्ना यसू अमरीकन गोरे नूं प्यार करदा, सब नूं यकसा। इसलिए उसने कहा है यूहन्ना 3 बाब 16। चौथी गल, दुनियावी गल, मैं इतना कमजोर हूं कि चल नहीं सकता। आगे पौलुस रसूल करंथियों के नाम दूसरे खत में कहता है मेरा फजल, यीशु मसीह कहता है मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। मैं आपको बताता हूँ अपनी स्टोरी। मेरे कमर के 2 मोरे जो थे ना, चौथा और 5वां, उनमें काफी इतना इधर गैप पड़ गया। कभी मैंने किसी के सामने जाहिर किया था कि मैं जी मेरी कमर है वो प्रॉब्लम है उधर नहीं। मैं चर्च भी आउंदा रहा, खुदा दा कलाम भी 50-50 मिनट का 40-40 मिनट का घंटे का सुनाना, लेकिन मेरे कभी दर्द नहीं था जो इन्ना लत्त दे विच ना लग रही ते बाहर जाने ते फिर दर्द शुरू होया। मैं इहदी अगुवाई दांगा बाद में तफसील देना। सो कहता है मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। जो तू मेरे को आ जाएगा ते मेरा फजल इन्ना को देते होएगा, हर किस्म की थकावट, दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी सब दूर हो जाएगी ते तू बिल्कुल ना विक्रम वांगू इंज हटा कटा दे सकदा। जवान छेती गल, मैं इस लायक नहीं। प्यो ने किसी ने जिम्मेदारी पुत्र या धी देनी है ना, उन्हें काम तो डरन मारिया, उन्हें कहना अब्बा
ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਭਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ। सो आगे लिखा है तू ऐसा कर सकता है। इसके लिए हवाला है फिलिपियों का खत 4:13 आयत, और इसमें लिखा है जो मुझे ताकत देता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता। कभी मायूस ना है अगर वो खुदा दी जात को, हमेशा मां बाप बड़े भैन भरा जो काम कहन खुदा का हुक्म जान के उन्होंने पूरे करेगा। अगे वे 6वीं गल, मैं इस लायक नहीं। अलाही गल ये वे खुदा हमें इस लायक बनाता है। इसके लिए हवाला है 2 ग्रंथियों उसका 9वां बाब 8वीं आयत। अगे 7वीं गल, ये इस लायक नहीं। 6वीं सी मैं इस लायक नहीं, तो 7वीं गल है प्यो किसी को कोई चंगा काम देना है ना, या कोई तोहफा देना है ना प्यो ने, तो जिहड़ा धी पुत्र गल नहीं ना मानता, मां ने कहना ना इनू भी लैके दे, उन्हें कहना ना 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 भागा वाली ये इस लैक ही नहीं, ये ना मेरी गल मानता ना तेरी मानता, इनू इंज ही रहन दे। सो यहाँ पर लिखा है ये खुदा की मर्जी के मुताबिक बुलाए गए हैं। सारे बच्चे, सारे इंसान खुदा की मर्जी के तहत इस दुनिया में आए हैं, और खुदा सबको प्यार करता है, और खुदा सबको इस लायक बनाता है कि वो हर काम कर सके। इसके लिए वाला है रोमियो का खत 8:1। हुण इन्हें मैं गल्लां दस्सण दिया, ये तुहानूं हुण एक भी याद नहीं रहनी। चर्च तो बाद ना जिन्हें भी पढ़े लिखे नौजवान ने कुड़ियां मुंडे उन्होंने अपने नाल लिखाओ, तो मैं अगले द्वार में उन्होंने कापियां भी तो बॉल पेन भी वधिया जिहड़ा VIP लैके ते हर बार वो नाल लैके आया करो, ते खुदा दे कलाम दे विचों हवाला जा ते मेन गल्लां लिखिया तां जो तुहाडे पल्ले कुछ पे। 8वीं गल, मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। कई बच्चे ने बड़े होंदे ने जज्बाती, जवानी जिहड़ी वो दीवानी हुंदी है। जे प्यो ने डांटिया या प्यो ने 2 थप्पड़ या 2 डंडे मार ले ना, ला उन्हें कहना मैं तो खुदकशी कर लैनी है, मेरे अब्बे ने मैनू जलील किया लोगों के सामने। सो लिखा है 8वीं बात, मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता। हकीकी अलाही ख्याल है, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को। इसका मतलब जब हकीकी नूर आपके पास आ जाएगा तो एल्डर साहब जो पतरस है उसने इनकार किया था यीशु का, तो पतरस का यीशु पर ईमान था कि यीशु उन्हें माफ करेगा, और उसने बाहर जाकर रो रो कर एक गीत गाकर उसने खुदा से माफी मांगी थी, और खुदा ने उसे माफ किया था। और यूदास करयूदी वो ऐसे आदा मालक सी, मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता, उन्हें जाके जनाब खा लिया फिर मर गया, ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ नहीं सी होया, उससे शैतान ने बादशाही किया। नवीं गल, मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। खुदा की गल ये, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। एहतियाज का मतलब है जरूरत, रफा करेगा, पूरी करेगा। सो मेरे जो इधर हवाला है फिलिपियों का खत 4 बाब उसकी 19 आयत। आगे 10वीं बात, मुझे डर लगता है, बड़ी मजेदार बात। सारा दिन बच्चे उसे घर दे विच फिरदे जे, सारे कमरियां दे बुला रोक चो नेरा पैंदा ना ते उस कमरे दी लाइट बुझी है, ते मां ने या प्यो ने कहना ना ओ पुत्तर जा जरा उठो, मेरी जुत्ती ते फड़ लिया प्यो काम तो होगा, मैं जुत्ती बूट लाने ने ते स्लीपर मेरे फड़ लिया। अब्बा मनु डर लगता मैं नहीं हो जाना, उत्थे नेरा ही नेरे चढ़ेला होंदी कैना होंदियां ने मैनू चंबड़ जाणगी। सो मेरे जीजो, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, खुदा सानू खौफजदा होने वाली रूह नहीं दी, बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह। इसके लिए हवाला है 2 तीमुथियुस 1 बाब उसकी 7वीं आयत। आगे
11ਵੀं गल मैं फिक्रमंद हूं। अच्छा कई ऐसे ने वो एवं ही कोई थोड़ी जी मुसीबत आ जाए ना परेशान हो जाते हैं हर वेले चुप चुप ते अपने अंदर ही ना घुटे वटे रहते हैं हौली हौली दिल करे ना सोच सोच के परेशान हो गए बीमार हो गए या ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या दिल करे शुगर जी लो हो जाए या हाई हो जाए। सो मेरी सी जो उस परेशान होने का क्या फायदा है जिससे वो मुसीबत भी नहीं जाती और तुझे अपनी सेहत भी जड़ी है ना मौत के करीब ला जाती। इलाही गल ये हमें फिक्रमंदी की जरूरत नहीं। इसके लिए हवाला है पहला पत्रस 5 बाब उसकी 7। मैं पढ़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि टाइम जो है वो बहुत हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर ये लिखा है कि हम सानू फिक्रमंद होने की लोड़ नहीं। अपनी सारिया फिक्र यसू ने कहा है कि मेरे तो सुन दो मैं तुम्हारी हर तकलीफ नू हर हालत नू दूर करांगा तुम्हारी हर जरूरत पूरी करांगा। सो मेरे चीजों अगे 12वीं गल है मैं कर मैं किया हाँ समीना दस जरा मैं की दसिया मैं की हाँ की ते मैं नहीं कला मेरे नाल है मेरा खुदा वायरली साड़ी होती है। सो इसके लिए है समीना कभी तू क्या कि मैं करनी है नहीं दिया शाबाश शाबाश वेरी गुड। इसके लिए हवाला है मत्ती 28:20 है और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। एडर साहब यसू ने जो वादा किया है कि उन्हां सारियां गल्लां ते अमल करो जिन्हां दा मैं तुहानू हुक्म दिता है तो फिर तुम आजमा के देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे नाल। समझ लगती है जिन्होंने तुसीं सारे कहते हो चला है तो तुसीं जिहड़े अकलमंद हो तुहानू समझ नहीं लगती। देखो वो ताली मारदा उन्हें समझ आ जाती है। ताली मारो खुदा दे वादे जो कहता है कि मेरिया सारिया गल्लां ते अमल करो तो मैं तुहानू कभी भी बेयारो मददगार नहीं छड्डांगा। यसू ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि शाबाश अपने वो अपने लिए जोर भी मार दिया करो तुम अपने आप नहीं लो। अगे 13वीं ते आखिरी गल आखिरी ये खुद अपने आप पर अप्लाई करें और अपनी कमी का इकरार करें कि किस चीज में कमी है। हुणे तुसा सारियां गल्लां सुनन तो बाद तुसा हुण ये अपने दिल च सोचना है कि साडे किहड़ी चीज की कमी है कि साडे ते ये जिहड़ियां अजमाइशां ने ये तकलीफां आउंदियां ने। कमी ये वे कि तुसी खुदा दे कलाम ते यकीन नहीं रखते खुदा दे कलाम ते अमल नहीं करते ते खुदा दे घर दे विच नहीं होंदे। हुण अज वेखो अज अद्धे भी नहीं लोग साइंस का कसूर है हरारत से चीजें फैलती हैं और सर्दी से चीजें सुकड़ती हैं। साढ़े चरते उल्टे गर्मियां हुई तो कलीसिया सुकड़ जाती है सियाल होने तो कलीसिया जी फैल जाती है। सो मेरे सीसो यहाँ पर लिखा है खुदा की बरकत का इकरार करें ये जरूरत से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करें। फितरती ख्यालात गुरबत पर कसरत से हमला करते हैं। जेड़े तुहाडे ख्यालात ने जेड़े मैं दसे ने 12 ये ख्याल अपने दिल चों कढ़ दो ते जेड़ी कलाम जो मैं गल्लां दसियां ने उन्हां नूं पल्ले बन लो ते ना तुहाडे ते गुरबत आएगी ना तुहाडे ते कदी परेशानी आएगी ना तुहाडे ते कदी बीमारी आएगी ना तुहाडे ते कदी मुसीबत आएगी ते ना ही तुसीं जेड़ी है वो बेयार मददगार होगे क्योंकि लिखा है मत्ती 28:20 और उनको ये तालीम दो यसू ने अपने शागिर्दां नूं किया कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है और देखो मैं दुनिया क्या करता हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आज यह गल जी 12वीं गल है ना इनू पल्ले बन लो ते इन्हां सारियां गल्लां ते अमल करो
जिन्हां दा हुक्म यसू ने अपने कलाम मुकद्दस दिता है कि उन्हें वादा किया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम ना तो अंधेरे में डरोगे, ना तुम कहोगे मैं थकिया वा, ना तुम कहोगे मैं कला वा, ना तुम कहोगे कि मेरी जिहड़ी है ना कोई गल नहीं सुनता, ना तुम कहोगे कि ये नामुमकिन काम जिहड़ा है ना नामुमकिन है, ना तुम ये करोगे कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, ना तुम ये कहोगे मैं इतना कमजोर हूँ कि चल नहीं सकता, ना तुम ये कहोगे मैं ऐसा नहीं कर सकता, ना तुम ये कहोगे मैं इस लायक नहीं, ना तुम ये कहोगे ये इस लायक नहीं, ना तुम ये कहोगे मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता, ना तुम ये कहोगे मैं इसे पूरा नहीं कर सकता, ना तुम ये कहोगे कि मुझे डर लगता है, तो ना तुम ये कहोगे मैं फिक्र मानदा, ना तुम ये कहोगे मैं परेशान। इन सारे दा इलाज यसू ने मत्ती 28:20 आयत दस्या है, और कि उन सब बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। खुदावन एक दागी मारता ना, वो बेचारे दे नाल कोई नहीं मारता, वो बेचारा शर्मिंदा हो गया आपकी मार। खुदा के कलाम की कितनी कोई समझ लगी है, समझ लगी तो खुदा का नाम जलाल देने तालियां मारते। सो मेरी दुआ है खुदावंद अज दा कलाम समझण दी, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਔਰ ਨੇਕ ਮਸੀਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, हिकमत दनाई दे, रूहानी ते जिस्मानी तौर पर मजबूत करे, ताकि तुसीं खुदा दे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां नूं सच्चे और नेक तरीके नाल गुजार सको। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। हम अपने सर को झुकाएं, दुआ करें। खुदा एक बुजुर्ग आसमानी बाप तेरा